Dear students, today we are going to start differentiation chapter number 1, exercise 1.3, question number 3. In this question, you have to find dy by dx. So what is the value of dy by dx if many terms are given, many sub questions are given? Now your question is in the form of an equation. Now see question first. Root of x plus root of y equal to root of a. So root of x plus root of y equal to root of a, where root of a is constant. So differentiating with respect to x, what is derivative of root x? D by dx of root x, derivative of root y, d by dx of root y, and derivative of root a, d by dx of root of a. Okay. So you know that d by dx of root x is 1 upon 2 root x. It is formula, plus d by dx of root y 1 upon 2 root y into dy by dx by chain rule, and derivative of root of a, since a is constant, so square root of a is also constant, so d by dx of root of a is 0. Therefore dy upon dx can be written as minus 1 upon 2 root x, taking this plus 1 upon 2 root x on the right hand side. So it is in the left hand side it is positive, so it will go in the right hand side, becomes negative. And 1 upon 2 root y goes on right, so it becomes 2 root y upon 1. Now 2 going by 2, so we see that root of y upon root of x is the remaining term. Therefore dy upon dx equals minus of square root of y upon x, which is final answer. So this question was very simple. Hope you are understanding this question. So now taking question number 2, x root of x plus y root of y equal to a root of a. तो आज के क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमारे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. तो इनको सिर्फ फार्मूले के हेल्प से या सिंपल फार्मूले के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो. अभी तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, फिर उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं. So what is your question number second? See this, x root of x plus y root of y equal to a root of a. So this question is also similar question, similar to first one. Therefore what is x root x? देखो root of x क्या होता है? x raised to half. तो x into x raised to half, तो power of x क्या है? 1, और यहाँ पर x raised to half, so 1 plus half becomes x raised to 3 by 2. Similarly this term y raised to 3 by 2 मीन्स इनके पावर को ऐड कर रहे हो, इक्वल टू a raised to 3 by 2, यहाँ पर भी 1 plus half. Now differentiating with respect to x, we get derivative of x raised to 3 by 2 using x raised to n formula, we get 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1. So x raised to 3 by 2 minus 1 is x raised to half, that is root of x. So we get 3 by 2 into root of x plus derivative of y raised to 3 by 2, 3 by 2 into y raised to 3 by 2 minus 1. So we get y raised to half, और y raised to half को square root of y लिख सकते हो. By chain rule d by dx of y, that is dy upon dx, and derivative of a constant term equal to 0. So therefore dy by dx equals, taking 3 upon 2 root x on the right hand side, we get minus 3 upon 2 root of x, and 3 upon 2 root y on the right hand side, so this will be 2 upon 3 root of y. So we see that this 2 and 2 cancelled, 3 and 3 cancelled. So what is the remaining term? Dy by dx equal to minus, as it is in the numerator only root of x and in the denominator only root of y. So it can be written as square root of x upon y. Clear? So dy upon dx equal minus square root of x upon y.
Now see next question. Third one, x plus root of xy plus y equal to 1. So dear students, first you have to do root of xy in the combined form. So you should break it root of x into root of y. What you have to do? Root of x into root of y. Separate it. Remaining term will be same, x as it is plus y as it is, 1 as it is. Only root of xy. So root of x into root of y. इसको combined form से क्या करो? Separate कर दो. Now differentiating with respect to x. Therefore, what is derivative of x? You know very well. Derivative of x is 1. Derivative of root of x into root of y is in the form of u into v. So using product rule u into v. यहाँ पर क्या यूज करोगे? Product rule. So d by dx of root x into root of y. See this. Root of x into derivative of root y 1 upon 2 root y into dy by dx. जैसा कि भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ कोई एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखा है, ये डायरेक्टली यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्म दिया गया. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन राइट वन मोर स्टेप हियर, द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग क्या है? u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लिख सकते हो, या डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. Therefore d by dx of x is 1 root of x into d by dx of root y 1 upon 2 root y into dy by dx plus root of y as it is into d by dx of root x 1 upon 2 root x plus derivative of y dy upon dx equal to 0. Why 0? Because derivative of 1 is 0, that is constant term. Now collecting dy by dx terms first. So see this, root x into 1 root x upon 2 root y. 2 root y is the denominator. देखो यहाँ dy by dx और एक dy by dx यहाँ पर, ये दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया और कॉमन कर लिया इनको. dy by dx इज कॉमन, तो वी गेट रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1. यहाँ पर नथिंग, तो यहाँ पर क्या है? 1. 1 तो रह जाएगा ना, dy by dx कॉमन, सो 1 इज रिमेनिंग. रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये हुआ सेकंड और फोर्थ टर्म में कॉमन हो गया. नाउ रिमेनिंग टर्म्स वी शुड राइट ऑन द राइट हैंड साइड. So remaining term is what? This one. So this becomes on the right hand side becomes what? Root of y upon 2 root x with negative sign. तो देखो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, प्लस 1. तो हमने क्या किया है? माइनस साइन को कॉमन कर लिया इन दोनों में. तो क्या मिला? रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को राइट में लेना है और माइनस को कॉमन कर लेना है. अब इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एलसीएम लेकर के कर सकते हो, या तो इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बना करके भी कर सकते हो. तो देखो 2 रूट वाई इंटू 1, दिस 2 रूट वाई, so root x plus 2 root y upon 2 root y into dy by dx equals, here 2 root x into 1 becomes 2 root x, so this will be minus into root of root y plus 2 root x upon 2 root x. अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे? वी वांट टू फाइंड dy by dx, so therefore dy upon dx equals minus this minus as it is, and दिस वन देखो ये 2 रूट वाई, इसका डिनोमिनेटर इस साइड आ गया 2 रूट वाई, ठीक है, इनटू दिस वन रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स, ये लिख लिया, अपॉन 2 रूट एक्स, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर है, और ये न्यूमरेटर इसका इस साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड. ओके, रेसिप्रोकल हो गया ना इस साइड आकर, ये और ये टर्म कहाँ से है? लेफ्ट हैंड साइड से, और ये दोनों टर्म कहाँ से हैं? राइट हैंड साइड से. तो 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ वाई plus 2 root x upon root of x plus 2 root y. Now this 2 and 2 will get cancelled. Therefore dy upon dx equals minus root y upon x into 2 root x plus root y upon root x into 2 root y plus root x. So this is the value of dy by dx. जैसा कि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया गया है, you have to find dy upon dx in each. Okay, now see next one, question number 4. Fourth one, what is question 4? See this, x cube plus x square y plus x y square
प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसको अपना डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई यूजिंग यू इंटू वी फार्मूला, और यहाँ पर भी यू इंटू वी फार्मूला। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ दिस u इंटू वी फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। ये हो गया अपना सेकंड टर्म का, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर अगेन यूजिंग u इंटू वी, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर, मीन्स एक्स रेज टू n फार्मूला अप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर, बट इट इज नॉट x, so into d by dx of y, that is dy by dx equal to 0। तो ये सभी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, मतलब इक्वेशन टाइप हैं सभी। तो फिर से देख लीजिए एक बार वंस अगेन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर बाई एक्स रेज टू n फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना 2x। अब इसके लिए देखो u इंटू वी अगेन, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। Now collecting dy by dx terms. So how many times dy by dx? One time, 1, 2 and 3. There are 3 times. So taking dy by dx common in all the 3 terms, and we should write remaining term in the bracket. This is remaining x square here plus x into 2y, that is 2xy plus 3y square here into dy by dx equal. Now we should write remaining terms, means without dy by dx terms, on the right hand side. So they will be negative, so we should take negative sign common first. This is 3x square and this one 2xy here, and this one y square into 1 plus y square। क्योंकि ऑल टर्म्स क्या है नेगेटिव हैं, इसलिए तीनों टर्म में हमने माइनस साइन पहले ही कॉमन रखा है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम ऐसा नहीं लिखोगे कि माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। इन केस अगर ऐसा लिखते हो तो अगले स्टेप में फिर से कॉमन करो और ऐसा ही लिखो जैसा यहाँ पर लिखा गया। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस टर्म, यहाँ पर डिवाइड कर दो। तो व्हाट वी गेट, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 is also over. Now see question number 5, which is very important question. Fifth, x square into y square minus tan inverse of square root of x square plus y square equal to cot inverse of root of x square plus y square। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने से ही तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, जैसे बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है उसको अगले स्टेप में देखो। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल, so taking tan inverse of this term on the right hand side, so we get positive, minus becomes plus, so tan inverse root of x square plus y square plus cot inverse root of x square plus y square। अब ये राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड किस टाइप का है ये नीचे लिखा गया, सेंस tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी दिया गया इनवर्स फंक्शन में, क्योंकि साइन इनवर्स का भी होता है साइन और कॉस का, tan कॉट और सेक कोसेक तीनों के पाई बाय 2 आंसर। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2। अभी अपना क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, tan इनवर्स इसको थीटा एज्यूम कर लो प्लस कॉट इनवर्स थीटा, मीन्स एंगल दोनों की क्या है सेम, तो ये पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज पाई अपॉन 2। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड किस टाइप का है, u इंटू वी टाइप। तो u इंटू वी देखो, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसा पहले से करते चले आ रहे हो, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x,
means using product rule u into v formula. And derivative of pi upon 2 is 0 because pi upon 2 is constant. और अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, इसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे 0. Now collect the common terms. So what is common in this step? So we see that 2xy and here also 2xy. So taking 2xy common, we get x into dy by dx plus y equal to 0. तो अपने को फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ dy by dx. तो टेकिंग 2xy ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ क्या आएगा 0 अपॉन, अगले स्टेप में 0 अपॉन क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर x इंटू dy by dx प्लस वाई इक्वल टू 0 अपॉन 2xy. तो 0 अपॉन 2xy 0, इसलिए इसको शो करने की जरूरत नहीं है. तो देयरफॉर dy by dx इक्वल्स प्लस वाई गोज राइट हैंड साइड बिकम्स माइनस, और x को क्या करोगे डिवाइड कर दो. तो dy by dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और क्वेश्चन देखने में जैसा कि मैंने पहले बताया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा क्वेश्चन की, ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ ये कि फार्मूला बाहर रखोगे, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या है 0, ये ध्यान देना. और लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी फॉर्म यूज करो एंड डोंट फॉरगेट चेन रूल. जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर किए तो 2y ही लिख के मत छोड़ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसमें. तो चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6. x into e raised to i plus y into e raised to x equal to 1. So it is also simple question. देखो u into v type and 1 is constant. So differentiating with respect to x we get x as it is derivative of e raised to y into dy by dx plus e raised to y into derivative of x is 1. ये हो गया u into v इतने का. अब plus as it is, now see u into v again. So y as it is derivative of e raised to x, same e raised to x plus e raised to x into derivative of y dy by dx, and derivative of 1 is 0. यहाँ पर आ गया. तो अब क्या करोगे, अगेन कलेक्टिंग dy by dx टर्म्स. तो x into e raised to y plus e raised to x and dy by dx common equal. now remaining term on the right hand side this and this, तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस. तो हमने माइनस साइन को कर लिया कॉमन, तो माइनस ई रेज टू वाई और प्लस वाई ई रेज टू एक्स. therefore dy by dx equals minus of e raised to y plus y into e raised to x upon e raised to x plus x e raised to y. ये टर्म कहाँ से आ गया डिनोमिनेटर, ये. तो इसको क्या करोगे इधर लाके डिवाइड. और ये दोनों टर्म जब यहाँ पर आए थे राइट साइड में, तो ये क्या हो गया था माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ ई रेज टू वाई माइनस ऑफ वाई ई रेज टू एक्स. तो दोनों में जब नेगेटिव कहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो माइनस साइन कॉमन कर लोगे, तो फिर से क्या हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस, और इसको यहाँ ला के डिवाइड कर दो. वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मच. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. e raised to x plus y equal to cos of x minus y. So it is also simple question, differentiating with respect to x. Since derivative of e raised to x plus y, e raised to x plus y by chain rule d by dx of x plus y, because it is not x. अपना फार्मूला किसके लिए, e raised to x के लिए. और x के अलावा अगर कुछ भी आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, e raised to x into e raised to, जैसे fx का था e raised to fx into f dash x. तो ठीक वैसा यहाँ पर है कि e raised to x plus y into d by dx of x plus y, मतलब ये f dash x शो कर रहा है, या बाय चेन रूल यू कैन से. एंड डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x माइनस वाई, देखो माइनस cos थीटा का cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई. therefore e raised to x plus y as it is derivative of x is 1, derivative of y dy by dx. so e raised to x plus y into 1 plus dy by dx equals minus sin x minus y into d by dx of x is 1 and derivative of minus y minus dy by dx. अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम लोग सिंपली सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन. तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए e raised to x plus y into 1 as it is into
e raised to x plus y into dy by dx equals minus sin x minus y प्लस, अब यहाँ प्लस कैसे हो गया देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. नाउ collecting dy by dx, all dy by dx on the left hand side and remaining term on the right hand side. तो देखो dy by dx containing this term and this term, हम लोग क्या करेंगे e raised to x plus y as it is, और ये टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और dy by dx इसमें भी था और यहाँ पर भी था, तो dy by dx कॉमन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई एज इट इज, and this term goes to right, we get minus of e raised to x plus y. Therefore dy by dx equal this term, इसमें देखो माइनस एंड माइनस दोनों टर्म में है, हम लोग क्या करते हैं इसका माइनस साइन कॉमन, यहाँ पर माइनस पहले कॉमन करोगे तो वी गेट साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई अपॉन, अब यहाँ देखो ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ दिस, अगर इसका माइनस साइन कॉमन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, देखो यहाँ पर भी माइनस साइन कॉमन हुआ, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई, मीन्स टर्म को इंटरचेंज कर दिया और माइनस साइन बाहर हो गया, तो माइनस अपॉन माइनस क्या हो गया प्लस, इसके लिए इसको कट कर दिया गया. ठीक है, फास्ट टू आंसर अपना लिख करके कंप्लीट करोगे. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th question. It is cos of xy equal to x plus y. So differentiating with respect to x, we get derivative of cos xy equal to minus sin xy into d by dx of xy by chain rule or by composite function, and derivative of x is 1, derivative of y is dy by dx. So see once again, d by dx of xy is in the form of u into v. So u into dy by dx plus v means y into dy by dx of x is 1. So x into dy by dx plus y as it is, derivative of x is 1. ये हमने u into v का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, किसके लिए, इतने के लिए, यहाँ पर आया इक्वल टू सेम टर्म 1 plus dy by dx. Now open the bracket, this bracket. So minus sin xy into x into dy by dx as it is, minus sin xy into y, so y into sin xy equal to 1 plus dy by dx. So again we should collect dy by dx term on the left hand side. So minus sin xy into x and minus 1, यहाँ नथिंग आ रहा है तो 1 into dy by dx तो है ना, तो 1 minus 1 remaining term here into dy by dx common term equal to this 1 as it is, right. और अपना ये टर्म देखो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई गोज टू राइट, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें देखो माइनस माइनस, ये माइनस साइन को हमने क्या किया है कॉमन, मतलब ये डिनोमिनेटर से कॉमन होके यहाँ पर आ गया, और ये टर्म को पहले लिखना है 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन, ये यहाँ पर ला के डिवाइड कर दो और इसका हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई. So this is value of dy by dx. Now see question number 9. E raised to x minus y equal to x upon y. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर टेकिंग लॉग कर दो, टेकिंग लॉग करोगे या बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग भी बोल सकते हो, पर e रेज टू ई है, हमने यहाँ पर लॉग कर दिया, तो e रेज टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई आता है, तो लॉग ई क्या हो जाता है 1, इसलिए यहाँ पर दिखेगा नहीं. तो e रेज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई, बस इतना ही दिखेगा. तो रीजन में सिर्फ इतना लिख दो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग. ठीक है, तो ये लॉग एक्स अपॉन वाई मीन्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, दिस इज फार्मूला, लॉगरिथम फार्मूला. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स माइनस वाई, e रेज टू एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई बाई चेन रूल. Derivative of log x 1 upon x and derivative of log y
1/y into dy by dx. Now collecting dy by dx टर्म्स, पहला तो क्या करोगे, इसको डेरिवेटिव करोगे, फिर dy by dx को कलेक्ट करना है. तो dy by dx of x is 1 and dy by dx of y is minus dy by dx. Right hand side will be same. Now open the bracket, e raised to x minus y into 1. We get e raised to x minus y minus e raised to x minus y into dy by dx equal 1 upon x minus 1 upon y into dy by dx. So taking minus 1 upon y divided by dx on the right hand side, we get plus 1 upon y into dy by dx. और यहाँ से माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म एज इट इज इक्वल 1 अपॉन एक्स एज इट इज एंड माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ये लेफ्ट टू राइट हो गया ट्रांसफर, तो हो गया नेगेटिव. अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो. अगले स्टेप में देखो, टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 1 अपॉन वाई माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई एज इट इज. देयरफॉर अब क्या करोगे, y इंटू दिस, ये हो गया 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई एंटायर अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू दिस, तो 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, अब देखो y गोज टू राइट, तो क्या हो जाएगा y इन द न्यूमरेटर, ये y यहाँ पर आ गया, तो ये लिखोगे y और अपॉन x यहाँ पर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ये इधर ला के डिवाइड कर दो, वाई अपॉन एक्स इंटू दिस अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस मच. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. x प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स y माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई. अब यहाँ पे देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना ही ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन ए प्लस भी नहीं, कॉस ए माइनस भी नहीं, डू नॉट अप्लाई एनी फार्मूला, डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई cos of x plus y into d by dx of x plus y. Derivative of y dy by dx minus as it is derivative of cos x minus y minus sin x minus y into d by dx of x minus y. तो अगले स्टेप में क्या करना है, सिर्फ इनका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, तो सिर्फ इतना चेंजेस कर दो. देखो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज इंटू, ये सिर्फ कॉस एक्स प्लस वाई इंटू होगा यहाँ पर. Derivative of x is 1 plus dy by dx equal to dy by dx as it is minus minus plus sin of x minus y into derivative of x is 1 and derivative of minus y minus dy by dx. Now open the bracket. So 1 as it is cos x plus y into 1 cos x plus y cos x plus y into dy by dx cos x plus y into dy by dx equal to dy by dx as it is sin x minus y into 1 sin x minus y minus sin x minus y into dy by dx. Now collecting dy by dx on the left hand side. So we see that dy by dx terms are two terms only, this and sorry three terms, 1 2 and 3, ये three terms हैं. तो इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं. तो cos of x plus y here, और इसको लेफ्ट में ले जाओगे तो माइनस का क्या हो गया, प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और वन मोर टर्म हियर माइनस 1. यहाँ से थ्री टर्म्स हैं, देखो 1 2 और 3. तो फर्स्ट वी राइट दिस प्लस दिस और माइनस दिस, और तीनों में डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो वी गेट दिस प्लस दिस माइनस 1. क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंग, यहाँ पर 1 इंटू तो है ना, उस साइड जाएगा माइनस, तो उसी का ये है माइनस. और राइट साइड में देखो साइन एक्स माइनस वाई एज इट इज, और ये टर्म यहाँ से आ जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हियर, और ये प्लस 1 बिकम्स माइनस 1, ये रहा राइट हैंड साइड. तो अब इसमें स्टूडेंट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये पूरे टर्म को ले जाके यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है, बाकी इतना ही करना है. अब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं.
तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस वन अपॉन, अब इसमें भी साइन फर्स्ट कर देते हैं, तो साइन साइन कॉस कॉस वन वन ऐसा दिखेगा, तो साइन ऑफ x माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई एंड माइनस वन। ठीक है, तो इधर दिस आंसर, ये स्टेप भी आंसर में लिख सकते थे और ये आंसर भी लिख सकते थे, थोड़ा साइन कॉस वन से सिस्टमेटिक हो गया, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो ये फुल्ली कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन, टोटल 10 सब क्वेश्चंस थे, तो ऑल सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पहले क्या करोगे, 10 स्टूडेंट्स सॉरी 10 क्वेश्चंस, ऑल स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस ये कंप्लीट करके इनको रीप्रैक्टिस करो। रीप्रैक्टिस करने के बाद फिर अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एंट्री करो, और जैसे ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट हो गए हों और सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करना न भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। श्योर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है वो देखो। In question 4, for all the sub questions, show that dy by dx equal to y upon x. Means you have to prove that dy by dx equal to y upon x in all the sub questions where a and p are constants. This means क्वेश्चन में स्मॉल a एंड p जहाँ भी आएगा उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इंफॉर्मेशन दे दिया है मेन क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये देखो अपना क्वेश्चन किस टाइप का है। फर्स्ट वन देखते हैं, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू 12। तो देखो इसमें लेफ्ट और राइट में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखो x एंड y आर बेसेस, तो इनके बेस का सम राइट में दिया है, राइट, x प्लस वाई। और राइट साइड में पावर्स में क्या है, 7 एंड 5, ये 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 होता है, ये यहाँ पर दिया। तो इस टाइप से अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा अगर दिया है, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम करो कि x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n, मतलब इस साइड का बेस सम ऑफ द बेसिस और सम ऑफ द पावर्स अगर राइट में दिया है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू ऑलवेज y अपॉन x होता है। dy बाई dx बिकम्स y अपॉन x, ये फिक्स आंसर है। मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और मल्टीपल चॉइस के लिए इसको बाहर रखो कि x रेज टू m, लिख लो x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x, ये फिक्स आंसर है। तो हम लोग अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। मीन्स एक जनरल फॉर्मूला हो गया हो। नाउ सी x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू 12। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या इनटू है, तो लॉग फार्मूले में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स रेज टू 7 प्लस लॉग वाई रेज टू 5 इक्वल टू 12, ये इसका पावर है, तो लॉग एम रेज टू एन क्या होता है, एन इंटू लॉग एम, तो 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर 7 log x प्लस 5 log y इक्वल टू 12 log x प्लस वाई। ये हो गया ना, log m रेज टू n की फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। नाउ differentiating with respect to x, therefore derivative of 7 log x, 7 constant as it is, derivative of log x 1 upon x plus as it is 5 as it is, derivative of log y 1 upon y into dy by dx equal to 12 into derivative of log x plus y 1 upon x plus y into d by dx of x plus y. Therefore, this becomes 7 upon x plus 5 upon y into dy by dx equals 12 upon x plus y into derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. Now open the bracket, this bracket open karna by multiplying 12 upon x plus y. So therefore 12 into 1, 12 upon x plus y, 12 upon x plus y into 1 this, and 12 upon x plus y into dy by dx, 12 upon x plus y into dy by dx. Collecting dy by dx,
these two on the left hand side. So we get 5 upon y minus 12 upon x plus y into dy by dx. On the right hand side 12 upon x plus y as it is minus 7 upon x here. तो अभी क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो. देखो 5 इंटू एक्स प्लस वाई, 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू 12 वाई इंटू डी वाई बाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसको भी मल्टीप्लाई करो. तो 12 इंटू एक्स 12 एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, in the denominator we see that x plus y and x plus y both are same terms, so they will be cancelled. Okay, तो इनको हम लोग यहाँ से क्रॉस आउट कर देते हैं. कट. नाउ ओपन द ब्रैकेट 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y ओनली, क्योंकि x प्लस y कट हो गया है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 12x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x, क्योंकि ये x प्लस y कट हो चुका है. तो अभी देखो 5x एज इट इज प्लस 5y माइनस 12y माइनस 7y सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन y इक्वल 12x माइनस 7x 5x माइनस 7y अपॉन x. देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स y अपॉन x. देखो इसका 5x माइनस 7y एंड 5x माइनस 7y गेट कैंसल्ड. So easily you can prove dy upon dx equal to y upon x. Now see its second question. Since x raised to p into y raised to 4 equal to x plus y whole raised to p plus 4, p belongs to n, that is natural number. You can see sum of the base x plus y and sum of the power p plus 4 similar. So taking log on both sides, we get log of x raised to p plus log of y raised to 4 equal to log of x plus y whole raised to p plus 4. Using log m raised to n, log m raised to n, log m raised to n formula in each, we get p log of x plus 4 log of y equal to p plus 4 log of x plus y. Now differentiating with respect to x, we get p into 1 upon x plus 4 into 1 upon y into dy by dx equal to p plus 4 into 1 upon x plus y into d by dx of x plus y, which is similar to previous question. So p into 1 by x d by x plus 4 into 1 upon y 4 upon y into dy by dx equals p plus 4 upon x plus y. Derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. Now open the bracket in the next step. We get p plus 4 upon x plus y into 1, p plus 4 upon x plus y plus p plus 4 upon x plus y into dy by dx. Left hand side will be same. Now collect dy by dx term, in these two. So 4 upon y as it is, and this becomes minus p plus 4 upon x plus y into dy by dx common equal p plus 4 upon x plus y and minus p upon x this side. Now multiply again 4 into this minus y into this, यहाँ पर देख लो, अपॉन y into x plus y into dy by dx. फिर से यहाँ पर p plus 4 into x मल्टीप्लाई हो गया और x plus y into माइनस p, तो माइनस पी एक्स माइनस पी वाई. देखो बोथ साइड सिमिलर टर्म्स उसी टाइप का है, अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स. तो अगेन देखो यहाँ पर क्या कट हो रहा है, यहाँ पर प्लस 4y एंड माइनस 4y गेट कैंसल. तो इन द न्यूमरेटर 4x माइनस पी वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई सेम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ तो कट हो रहा है, देख लो क्या कट हो रहा है, प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स. तो वी गेट 4x माइनस पी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. अब ये देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई गेट कैंसिल, इन द न्यूमरेटर 4x माइनस पी वाई गेट कैंसिल एंड टेकिंग y ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर क्या बचता है x दिस टर्म. देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x. इतना ही टर्म हो रहा है ना रिमेनिंग, बाकी कुछ नहीं है. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. sec x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 equal to a स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे, देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था ना a इज कांस्टेंट, तो a स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट. जैसे a इज कांस्टेंट तो स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट ही रहेगा ना. तो हम लोग क्या करते हैं, सेक ऑफ दिस, ये सेक को इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो क्या बनेगा सेक इनवर्स हो गया ना. तो x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5
अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल टू सेक इनवर्स ए स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स ए स्क्वायर होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, होल क्वांटिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। तो लेट इट बी ए, कैपिटल ए अज्यूम किए कर लो इसको, क्योंकि इतना बड़ा कांस्टेंट क्यों लिखोगे बार बार, उसको एक लेटर से भी लिख सकते हो, के अज्यूम कर लो, ए अज्यूम कर लो, एम अज्यूम कर लो, एनी अल्फाबेट, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर ए इक्वल टू सेक इनवर्स ए स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट, ले लिया इसमें ए। ठीक है, अब क्या करूँ इसको, दिस इंटू ए मल्टीप्लाई कर दो अगले स्टेप में। तो देखो ए एक्स रेज टू 5 माइनस ए इंटू वाई रेज टू 5, एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इक्वल टू दिस मच। Therefore, y raised to 5 as it is plus ay raised to 5 means collecting y terms on the left hand side, y terms जितने भी हैं क्या करेंगे लेफ्ट में कलेक्ट कर लो, और x टर्म्स को क्या करो राइट हैंड साइड में कलेक्ट करो। तो ए एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5, ये टर्म को यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ ले लिया तो प्लस हो गया। नाउ y raised to 5 y raised to 5 कॉमन, वी गेट 1 प्लस a, दिस साइड x raised to 5 x raised to 5 कॉमन, वी गेट a minus 1। So therefore y raised to 5 equal to a minus 1 upon 1 plus a या a plus 1 एक ही बात है, तो a minus 1 upon a plus 1 into x raised to 5 as it is। तो what is this, इसको हमने a कांस्टेंट था, तो a minus 1 upon a plus 1 is also कांस्टेंट, देखो 1 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, a कांस्टेंट 1 कांस्टेंट, तो ये होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो फिर से हम इतना बड़ा कांस्टेंट क्यों लिखें, उसको दूसरा लेटर कोई b एज्यूम कर लेते हैं, वेयर b इक्वल टू a minus 1 upon a plus 1 और कांस्टेंट। ठीक है, तो therefore y raised to 5 equal to b into x raised to 5 and let it be equation first। Now differentiating equation 1 with respect to x, differentiating equation 1 with respect to x, derivative of y raised to 5, 5 into y raised to 4 into dy by dx by chain rule equal to this b as it is, derivative of x raised to 5, 5 into x raised to 4 by x raised to n formula, simple many times यूज कर चुके हैं। Therefore dy by dx equal b into 5x raised to 4 upon 5y raised to 4। अब क्या करोगे, ये b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज b, b इक्वल टू y raised to 5 अपॉन x raised to 5, ये b का वैल्यू मिलेगा ना, तो उसको अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो यहाँ पर। तो therefore dy by dx इक्वल y raised to 5 अपॉन x raised to 5 इंटू x raised to 4 अपॉन y raised to 4। यहाँ पर फिर से देख लो, ये 5 5 कट हो गया, x रेज टू 4 y रेज टू 4 और b का वैल्यू क्या है, y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5, ये देखो। तो 4 टाइम्स y रेज टू 4 यहाँ ये जो है यहाँ से 4 टाइम्स कट हो गया, x रेज टू 4 4 टाइम्स इसे यहाँ से निकल गया, कट हो गया, तो क्या बचता है 1 टाइम y 1 टाइम x, दैट इज y अपॉन x। देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स y अपॉन x। सब में प्रूफ करना है तो y अपॉन x ही सब में आना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्योंकि क्वेश्चंस इसमें सिमिलर हैं, कोई थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, वो थोड़े थोड़े चेंज को समझो, और सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ सी फोर्थ वन, tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ tan इनवर्स गिवन है, तो ये tan को अगर हम लोग ये साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, tan ऑफ ए स्क्वायर। Since a is constant given in the question, therefore a square is constant. So tan of a square is also constant. Clear? So let it be capital A, where a equal to tan of a square, which is a constant. Again, 3x square minus 4y square as it is a into 3x square plus a into 4y square. Now collecting x square term in the left और y square term किसी भी साइड में, means collecting x square on the same side and y square on the another side। तो यहाँ पर 3x square minus 3x square into a equals a into 4y square here plus 4y square this side। So what is common? See this 3x square common, taking 3x square common we get 1 minus a, this side 4y square common, a plus 1, taking a plus 1 on that side, we get 3x square into 1 minus a upon 1 plus a equal to 4y square।
Since a is constant, 1 is constant, so entire quantity is constant. Let it be b. So therefore 4y square equals 3x square into b. And let it be equation first, where b equal to 1 minus a upon 1 plus a, which is a constant. Now differentiating equation 1 with respect to x, derivative of 4y square, 4 as it is, derivative of y square 2y into dy by dx, and derivative of 3x square 3 into 2x into b. Therefore dy by dx equal to 3 into 2x अपॉन 4 इंटू 2y, ये हमने ले लिया। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो व्हाट इज b, 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ b सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, नाउ 3 3 गेट कैंसल्ड, 4 4 गेट कैंसल्ड, 2 2 गेट कैंसल्ड, x one time cancelled and y one time cancelled. What is remaining? Therefore dy by dx equals y upon x. Easily you can solve. कोई टेंशन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, easily you can solve this question. Okay, now see question number 5. In fifth question, cos inverse of 7x raised to 4 plus 5y raised to 4 upon 7x raised to 4 minus 5y raised to 4. अब इधर देखो बोथ साइड इनवर्स दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि cos इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको उधर लेके जाऊं कि इसको इधर लेके आऊं, कंफ्यूजन। तो किधर लेके जाना है, इधर कांस्टेंट बैठा हुआ है, क्या है, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू हम किधर देख रहे हैं, ए इज कांस्टेंट, तो tan इनवर्स ए इज कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को उठा के यहाँ पर लेके आ जाओ, तो कॉस इनवर्स बिकम्स कॉस, कॉस ऑफ tan इनवर्स ए। So entire quantity is constant. Let it be a, where a equal to cos of tan inverse a, which is a constant term. Therefore 7x raised to 4 plus 5y raised to 4 upon 7x raised to 4 minus 5y raised to 4 equal to a. So cross multiply numerator as it is equals a into 7x raised to 4 minus a into 5y raised to 4. So 7x raised to 4 common in these two terms, देखो common, we get 1 minus a, and 5y raised to 4 5y raised to 4 common in these two, we get minus 1 minus a. तो किसी भी साइड में कलेक्ट कर सकते हो, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेकिन डिफ्रेंसिएशन के पहले वाई टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेना, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, नाउ 7x raised to 4 टेकिंग माइनस साइन आउट, तो दिस विल बी a minus 1, देखो a minus 1 कर दिया और माइनस साइन बाहर, 7x raised to 4 अपॉन यहाँ से भी माइनस 1 माइनस ए डिवाइड कर लिया और माइनस साइन कॉमन, a प्लस 1 इंटू 5y raised to 4। देयरफॉर 5y raised to 4 इक्वल b, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, देखो b इतने को, और ये यहाँ पर देखो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, माइनस अपॉन माइनस, और इसको हमने b भी अज्यूम कर लिया। तो 5y raised to 4 equal to b into 7x raised to 4, where b equal to a minus 1 upon a plus 1, which is a constant term. Let it be equation first. Differentiating equation 1 with respect to x, we get 5 as it is, derivative of y raised to 4 4y cube into dy by dx, b as it is because of constant, derivative of 7x raised to 4 7 into 4x cube. अब क्या करना है अगले स्टेप में, therefore dy by dx equal to substitute the value of b from equation first. अब इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर है, व्हाट इज b, 5y raised to 4 upon 7x raised to 4, वो हमने वैल्यू ऑफ b ये एंटायर पार्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय this one 7 into 4x cube upon 5 into 4y cube as it is. Now 5 going by 5, 7 going by 7, and powers this 4 going by 4, 3 पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कट हो जाएगा और 3 इसका पावर और यहाँ से 3 कट हो, तो y only y and x remaining term in the denominator, therefore dy by dx equal to y upon x. Hence prove this question also. Now see sixth one, question number 6, log of x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20 equal to 20। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया इसको बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग,
So x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20 equals e to the power 20. जब यहाँ e raised to 20 आ जाएगा तो ये log खत्म हो गया, log eliminated. ठीक, we get this. तो e इसमें देखो, e is an rational number, already a constant. तो its whole power 20 क्या है, constant है, ये पूरा टर्म constant है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, a assume कर लेते हैं. ठीक है, let it be capital A. So therefore x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20 equal to a. तो ये स्टेप देखो, अभी यहाँ जहाँ e raised to 20 था उधर क्या हो गया, a. Where a equal to e raised to 20 which is a constant. रीजन लिखना कंपल्सरी, तो कंपल्सरी रीजन लिखोगे. Therefore x raised to 20 minus y raised to 20 equal a into x raised to 20 minus plus a into y raised to 20. You collecting x term x raised to 20 minus ax raised to 20 and collecting y term on the right, a into y raised to 20 plus y raised to 20. We see that x raised to 20 common, we get 1 minus a. Here y raised to 20 common, we get a plus 1 into y raised to 20. Therefore x raised to 20 into 1 minus a upon 1 plus a equal to y raised to 20. Therefore y raised to 20 equal to b into x raised to 20, where b equals 1 minus a upon 1 plus, which is a constant. And let it be equation 1. So differentiating equation 1 with respect to x. Therefore derivative of y raised to 20, अब यहाँ x raised to n की फार्मूला अप्लाई करोगे, 20 y raised to 19 into dy by dx by chain rule. b as it is, derivative of x raised to 20, 20 into x raised to 19. Therefore dy upon dx equals y raised to 20 upon x raised to 20. This is value of b from equation first. And 20x raised to 19 upon 20 y raised to 19 as it is. We see that 20 and 20 going, 19 powers subtracted here in these two terms. Therefore dy upon dx y upon x. क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो ये अच्छे से क्लियर हो गया है. तो चलो अगले सम की तरफ चलते हैं. 7th, e raised to x raised to 7 minus y raised to 7 upon x raised to 7 plus y raised to 7 equal to a. अब इसमें देखो, इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, उसमें लॉग गिवन था, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में इसमें लॉग गिवन था. तो और इसमें क्या, यहाँ पर है e रेज टू समथिंग. यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स या बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग. तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर को लॉगरिथमिक पावर में कन्वर्ट कर दिया लॉग. तो यहाँ पर लॉग ए आ जाएगा, यहाँ से e एलिमिनेट हो जाएगा. तो x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 इक्वल टू लॉग ऑफ a. या ऐसा किसी को डाउट है तो यहाँ लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा, देखो log m रेज टू n, ये पूरा पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में साइड में आ जाएगा. यहाँ आएगा इंटू, यहाँ पर इंटू लॉग e, राइट ना. और लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, तो भी तो इतना ही दिखेगा ना. और इस साइड क्या दिखेगा, लॉग ऑफ a. तो ऐसा भी लिख सकते हो कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स. तो a इज कांस्टेंट, देयरफॉर log a इज कांस्टेंट. तो हम लोग इतने बड़े कांस्टेंट को नहीं लिखना चाहते, तो लेट log a बी a, where a equal to log a which is a constant, और ये टर्म as it is. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ax raised to 7 plus a y raised to 7 equal to x raised to 7 minus y raised to 7. ठीक है. नाउ a plus 1, तो इसमें क्या कॉमन करोगे, a y raised to 7 plus y raised to 7, इसमें हो गया y raised to 7 कॉमन, a plus 1 into this इक्वल. और यहाँ पर देखो इस साइड को, इस टर्म में एक्स रेज टू 7 को राइट में लेके आओगे तो 1 माइनस ए इंटू एक्स रेज टू 7, एक्स रेज टू 7 कॉमन. देयरफॉर वाई रेज टू 7 इक्वल्स 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू एक्स रेज टू 7. अगेन 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इज कांस्टेंट like as previous questions. So let it be b, where b equal to, let it be b. So therefore y raised to 7 equal to b into x raised to 7, where b equal to 1 minus a upon 1 plus a. And let it be equation 1. So b is also constant.
Now differentiating equation 1 with respect to x. What is derivative of y raised to 7? 7y raised to 6 into dy by dx equal to b into 7x raised to 6. Therefore dy upon dx equal y raised to 7 upon x raised to 6. Sorry, x raised to 7. स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 लिखना है, ध्यान देना। y रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7, सिली मिस्टेक हो गई है, इंटू 7x रेज टू 6 अपॉन 7y रेज टू 6. तो 7 7 कट, 6 पावर सब्ट्रैक्टेड, इट इज 7. So 1 term is remaining of x. Okay, so x 1 term remaining. Therefore dy by dx equal to y upon x. So please students to write here 7. यहाँ पर कंपल्सरी 7 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, इसको 7 करोगे. Now see question number 8. Sin of x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to a cube. तो इस क्वेश्चन में भी देखो, टेकिंग साइन ऑन दैट साइड, we get sine inverse of a cube. Since a is constant, so sine inverse of a cube constant. Let it be capital A. Therefore, x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to sine inverse a cube. So x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to a, where a equal to sine inverse a cube, which is a constant. This is capital A and this is small. Now cross multiply again. So ax cube plus ay cube, this into this, equal to x cube minus y cube. Taking y term on the left side and taking y cube common. So a plus 1 into y cube equal to 1 minus a into x cube. X cube minus ax cube. So x cube is common here. We get 1 minus a into x cube. Therefore, y cube equals 1 minus a upon 1 plus a into x cube. Since this quantity is constant, this one, so let it be b. Therefore, y cube equal to bx cube, and let it be equation first, where b equal to 1 minus a upon 1 plus a, which is a constant. Now differentiating with respect to x. What is derivative of y cube using x raised to n formula? So this is 3y raised to 3 minus 1, that is 3y square, but it is not x, so by chain rule into d by dx of y, dy by dx equal to b as it is into derivative of x cube is 3x square, similar formula. Therefore dy by dx equals b. What is b? Now see equation first. B equal to y cube upon x cube. Y cube upon x cube into 3x square upon 3y square. 3x square upon 3y square. Therefore dy upon dx equals y upon x. तो ये अपना 8th क्वेश्चन का आंसर, dy by dx इक्वल टू y upon x. सी वंस अगेन. तो स्टूडेंट्स एक क्या करेक्शन करना है यहाँ पर, x रेज टू 7, ये ध्यान देना है सबको, x रेज टू 7 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है. ये बाय मिस्टेक 6 लिख दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया, तो इसको x रेज टू 7. सॉरी, वंस अगेन फॉर दिस टर्म, dy by dx equal to y raised to 7 upon x raised to 7. You should write 7 here into 7x raised to 6 upon 7y raised to 6. Then we get dy by dx equal to y upon x. And sine of x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to a cube. Since a is constant, it is given in the question, so a cube is also constant. So taking sine on the right hand side, we get x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to sine inverse a cube. So it is a constant, so we should write a single lettered constant a, or you can say k, or you can say m, etc., where a equal to sine inverse of a cube, which is a constant. Then cross multiply के बाद क्या करोगे, collecting y terms and x terms, y terms in the left hand side, x terms in the right hand side, and then we take common y cube in the left, x cube in the right, then y cube equal to 1 minus a upon 1 plus a. This is constant, which is equal to b,
वेयर b इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। क्योंकि ये b क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कांस्टेंट हम लोग टाइम टू टाइम क्यों लिखें, ओनली कांस्टेंट उनको एक सिंगल लेटर से भी शो कर सकते हो। तो वी शुड राइट दिस y क्यूब इक्वल टू बी एक्स क्यूब and let it be equation first. Now differentiating, we get this term, substituting the value of b and simplifying, we get dy upon dx equal to y upon x. Okay, so students, in today's lecture till question number this only one question is remaining, question number 5. तो उस क्वेश्चन को अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.